The situation in Howrah continues to remain tense. Security forces have been deployed. Our RAF forces have been deployed as well. Section 144 is in place. Prohibitory orders have been imposed in Howrah after 2 days of continuous clashes. Internet has been suspended. We will have a reporter from Republic Bangla joining us live to give us a live update on the situation in Howrah 2 days after the clashes. What we can also tell our viewers is that an MP from West Bengal, Jagannath Sarkar, has written to Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. This BJP MP is requesting the intervention of central forces to prevent the spread of repression in Howrah, and he's demanding NIA investigation into the root cause of the riots. This has been the demand of the BJP for the last 2 days, that central forces should be deployed in Howrah in the light of the violence, and they've also demanded a central agency probe into the root cause of the clashes that have taken place on the day of Ram Navami as well as a Friday. Pinky from Republic Bangla is joining us live on this broadcast to get us more details about the situation in Howrah right now. Pinky, what are the details? You're in Howrah. What are you witnessing in Howrah? What is the situation there right now? देखिए, शिवपुर में अभी तक आप देख सकते हैं कि बहुत अभी 10 के बहुत बज चुके हैं और अभी जो है अभी तक फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। रैफ है अभी यहाँ पर डिप्लॉयड है और सबके पास आप देख रहे हैं कि कोई भी टेंशन यहाँ से कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए हर एक पॉइंट पे ये पिकेट किया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे हेलमेट सबके हाथ में है, ऐसे हेलमेट यूज़ कर रहे हैं सब, और सबके पास सब रैफ जो टीम डिप्लॉयड है उन लोगों के पास टीयर स्मोक है, टीयर स्मोक है सब लोगों के पास। कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होता है तो ताकि सिचुएशन कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा और एक सिचुएशन और एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगी। मैं हूँ अभी एक जगह में जहाँ पर बहुत तोड़फोड़ किया गया था और अभी वहाँ पर सफाई का काम चल रहा है। कोलकाता कॉरपोरेशन के तरफ से स्टाफ आया है और यहाँ पर साफ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि हावड़ा शिवपुर का जो इलाका है उसको नॉर्मल करने का कोशिश किया जा रहा है। और परसों रात को जो सिचुएशन हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंदर में कितना सब जगह कांच, शीशा का टुकड़ा यहाँ हुआ है। और सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर जितना भी बॉटल्स जो है तोड़ा गया था, जो पत्थर है उनको उससे शीशे में मारा गया था और पूरा जगह तोड़फोड़ मचा रखा था परसों को। और आपको कह दूं कि इस जगह में अभी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ताकि अभी पॉलिटिकल वॉर चल रहा है दोनों की तरफ से। बीजेपी जो है वो कह रहा है कि सेंट्रल टीम उतारना चाहिए और इसके पास एनआईए को भी इन्वेस्टिगेशन करना देना चाहिए, तभी सब बाहर आएगा। इसके बावजूद मैं दिखाना चाहूँगी कि सामने आप देख सकते हैं कि दूसरे जो बैंक वगैरह है, जो शॉप है, वो सब यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया था। और बाहर में अगर देखूँ, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं वहाँ पर सभी जगह पुलिस डिप्लॉय किया है, स्पेशल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सब मिलके आप देख रहे हैं कि रैफ है, पुलिस है, महिला फोर्स है, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। और बाइक कुछ from the violence-hit areas in Howrah. In fact, she's at the same location. We had a video yesterday of how there was an attack by lathis, by a stick, on the very front of the shop there, the pizza outlet there. The shop was attacked. The vehicles in front of that shop were damaged, were thrown away. In fact,
This is a live report we are getting. We can also tell our viewers that a Bengal BJP MP has written to the Prime Minister and to Home Minister Amit Shah requesting the intervention of central forces to prevent the spread of repression in Howrah, demanding an NIA investigation to probe the root cause of the riots as well. We've been getting responses on this entire situation in Howrah with the BJP attacking the TMC government in the state. Let's listen in first to Union Minister Smriti Irani. जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाई। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों पर प्रहार करते रहते हैं। ममता बनर्जी तो भड़काई है। ममता बनर्जी तो बोली कि रमजान का महीना है, अगर हिंदू जाता है तो उसको खदेड़ दो। ममता बनर्जी तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल को। आप देखिए कि बंगाल में किस तरह हिंदू समाज रह रहे हैं। एक तरफ रामनवमी का जुलूस था और वो धरना कर रही थी, भाषण देकर के उकसा रही थी अल्पसंख्यक समाज को, जो बंगाल में बहुसंख्यक हो गया है।